we will continue from the last video. This is your video number 4. This is your video number 4. वीडियो नंबर 4 में हम क्या करने वाले थे, 3 थीटा वाले फॉर्मूले के बारे में एंड उसके बाद का पार्ट कंटिन्यू करने वाले। पहले हमने प्रोफाइल 0 किया था, जो आपको 9th-10th में आपने पढ़ा हुआ है। देन प्रोफाइल 1 में क्या था, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन होगा, उसको दूसरे किसी रेशियो में कन्वर्ट करना, मतलब साइन का वैल्यू गिवन है tan में बदलना। इट इज़ नॉट दैट सिंपल, आपको क्वाड्रेंट का यूज़ करके करना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखने का। उसके बाद प्रोफाइल 2 था। प्रोफाइल 2 में बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करना, 90 के मल्टीपल में लिखते थे। प्रोफाइल 3 में ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स था, पेयरिंग ऑफ टर्म्स था। प्रोफाइल 4 में फॉर्मूले थे। तो फॉर्मूले के बाद मैंने 3 सेट ऑफ फॉर्मूला बताया था, फिर एक हाफ एंगल फॉर्मूले जैसा बताया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वी कैन कॉल इट प्रोफाइल नंबर 5 and this is related to 3 theta angles. So first I will give you some formulae and then we will derive them one by one. So the first formula is sin 3 theta, that is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Then cos 3 theta का फॉर्मूला होता है, and cos 3 theta का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये भी डिराइव करने वाले हैं। फिर tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। Now using these formulae we find the value of sin 18 degree, that is root 5 minus 1 by 4. Using that we will find the value of cos 36 degree, that is root 5 plus 1 by 4. Using these same we will derive 3 other formulae, sin 60 degree minus theta into sin theta into sin 60 degree plus theta, and that is 1 by 4 sin 3 theta. That is 1 by 4 sin 3 theta. Then cos 60 degree minus theta into cos theta into cos 60 degree plus theta. That is 1 by 4 cos 3 theta. And then comes tan का फॉर्मूला। तो tan का फॉर्मूला तो क्या है, sin अपॉन cos करोगे tan आ जाएगा। तो लेटेस्ट डिवाइड इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। So sin by cos will give you tan 60 minus theta. Similarly, here we get tan theta and here we'll get 60 plus theta. So if you look at the pattern, what do we say कि the value will be 1 by 4 tan 3 theta. लेकिन एक्चुअली में डिवाइड करोगे तो 1 by 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ tan 3 theta आएगा। So these are the formulae that I am talking about. We are going to derive one by one and then we will use some of them to find solution to the questions. So now let me start with the first formula, that is sin 3 theta equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, इसका derivation. Usually derivations are not important, but in this case you have to solve it. So left hand side से start करेंगे। sin 3 theta को we can write theta plus 2 theta. We can also write it as sin theta plus theta plus theta. But then हमें फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, sin a plus b plus c, जबकि यहाँ हमें वो फॉर्मूला याद नहीं है, हम यूज नहीं करते। आई विल से कि हमें पता ही नहीं। So what formula we remember and we use is sin a plus b. तो हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना था, तो एक थीटा और एक 2 थीटा ले लिया। Now you may ask, वैसे तो आप नहीं पूछते, मैं ही पूछता हूँ कि भाई दोनों पार्ट मैंने 3/2 थीटा 3/2 थीटा क्यों नहीं लिया। बिकॉज उस केस में हमें 3/2 थीटा के फॉर्म में आंसर आता, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें आंसर चाहिए किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। सी दिस। तो जब थीटा के टर्म में आंसर चाहिए तो हमें थीटा में ही ब्रेक करना पड़ेगा ना। इसका फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का, तो आएगा साइन a cos b प्लस cos a
साइन भी. Now this cos 2 theta I can write 1 minus 2 sin square theta. Now actually there are 4 formulae of cos 2 theta. कौन से? 1 minus 2 sin square theta, 2 cos square theta minus 1 cos square theta minus sin square theta, and fourth one is वो tan में होता है ना, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. तो मैंने यूज किया है साइन वाला फॉर्मूला बिकॉज हमें सारा का सारा आंसर साइन थीटा में ही लाना है. नाउ दिस साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin theta cos theta. Now I am going to multiply and I will use S for sin theta and C for cos theta. So this will give you S minus 2S cube. ये समझ लो, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो. और सेकंड में अगर देखोगे तो we will get 2 sin cos square theta. तो sin minus 2 sin cube तो सही है, लेकिन ये cos स्क्वायर को हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा बिकॉज सब कुछ साइन में चाहिए. नाउ दिस इज 2 sin माइनस 2 sin क्यूब और ये पहले का. फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज sin प्लस 2 sin इज 3 sin and 2 and 2 4 sin क्यूब. So this is your formula for sin 3 theta, which is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. In the very same way, we can find the value of cos 3 theta. That will be your homework. You can try, attempt and find the answer. Keep in mind कि हमें आंसर cos में लाना है, तो जहाँ जरूरत पड़े ऑप्शन हो तो प्रेफर कोसाइन. tan थीटा का फॉर्मूला तो आपको खुद से आप कर सकते हैं. कैसे? tan 3 theta will be what? sin 3 theta by cos 3 theta. दोनों का फॉर्मूला लिखो और फिर उसको tan में बदलना है. That is again your homework. Now I am going to find value of sin 18 degree. Sin 18 degree का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? Let us take a number 18 degree as theta. अब मैं इसमें phi theta निकालने जा रहा हूँ and phi theta is 90 degree. Now think about कि मैंने phi theta क्यों लिया? 3 theta, 2 theta, 4 theta, 6 theta, 7 theta ये सब क्यों नहीं लिया? So I have taken phi theta because 18 का कोई भी मल्टीपल जो हमें वैल्यू पता होती है, नोन एंगल, तो 18 का मल्टीपल देखोगे 36, 54, 72, 90. 90 is the first known angle which comes in the table of 18, इसलिए हमने उसे 5 से मल्टीप्लाई किया. अब phi थीटा का फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है. So what we do is अगेन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है. अब 2 पार्ट में भी डिवाइड किया तो वापस 2 और 3 में क्यों? क्योंकि अब हमें 2 के साथ साथ 3 का भी फॉर्मूला पता है. नाउ वी विल डू इट लाइक टेक साइन ऑन बोथ द साइड्स. तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इट्स बेटर कि दोनों थीटा को अलग अलग कर लो. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट. अगर दोनों दुश्मनों को अलग अलग कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा. तो 3 थीटा मैं यहाँ रखता हूँ और 2 थीटा यहाँ ले जाता हूँ. Now they are separated, they will be weak and we can use that to our advantage. Now sin 3 theta is sin 90 minus 2 theta and sin 90 minus 2 theta is cos 2 theta. Now sin 3 theta का फॉर्मूला होता है 3 sin theta माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. वापस से मैं साइन थीटा को ऐसे लिख रहा हूँ. इक्वल टू कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं. कौन सा यूज करने वाले हम लोग? वी आर गोइंग टू यूज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज दैट कंटेन्स ओनली साइन. तो अपना काम आसान रहेगा. नाउ दिस इज 4 साइन क्यूब, ये वाला पार्ट राइट साइड में ले गए, माइनस 2 साइन स्क्वायर ये यही रहा, 3 साइन उधर गया तो माइनस 3 साइन और 1 यहीं रहा तो 1. Now this is a cubic equation in S, or you can say sin theta. Now you must be knowing how to solve a cubic equation. So take a pause and find the value of sin theta using the cubic solution. For those who don't know or don't remember actually, I'll give you a brief. क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए
पहला रूट ट्रायल एंड एरर से फाइंड करते हैं। ट्रायल एंड एरर का मतलब 1, पहले 0 चेक कर लो, फिर 1 -1 2 -2। किस्मत खराब हुई तो कभी कभी आपको 3 -3 पे जाना पड़ता है, और अगर आपका बैड लक ही खराब है तो यू हैव टू चेक फॉर 4 and -4। बट एज यू नो कि वी गेट सम आइडिया अबाउट कि कौन से नंबर्स पॉसिबल हैं, एंड फॉर दैट वी यूज दिस लास्ट कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म 1 है तो इसके जो फैक्टर्स हो सकते हैं वही पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी है, और 1 के फैक्टर्स होंगे 1 और -1। तो फिलहाल हमें सिर्फ 1 और -1 के लिए चेक करेंगे तो अपना काम मोस्टली हो जाता है। तो लेट्स चेक फॉर 1। अगर साइन की जगह 1 रखोगे तो आई विल गेट 4 -2 -3 +1 दैट कम्स आउट टू बी 0। और 1 पुट करने पे 0 आया, इसका मतलब यू नो द रिमाइंडर थियरम, यू नो द फैक्टर थियरम दैट इफ अल्फा पुट करने पे 0 आता है तो x minus alpha is a factor of that polynomial. So here we see 1 पुट करने पे we are getting 0. It means s minus 1 will be a factor. अब s minus 1 से आपको एक फैक्टर मिला। अब s minus 1 से इस क्यूबिक को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के लिए अपने पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है, and also we have synthetic division. So you use whatever you know. I am going to use synthetic division. जिसको पता है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं पता you can Google it, or you can use the long division also. बहुत पेपर में या क्वेश्चंस में बहुत बार लॉन्ग डिवीजन की जरूरत पड़ती नहीं है. So if you are using long division also doesn't make much difference. तो सिंथेटिक डिवीजन में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे कोफिशिएंट्स लिखने हैं। बीच में कोई टर्म मिसिंग हो, लाइक x² का टर्म मिसिंग है तो 0 लिखने का। फिर x -1 से डिवाइड करना हो तो कोफिशिएंट का नेगेटिव मतलब +1, -1 का नेगेटिव +1 यहाँ लिख देने का। फिर फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज कॉपी हो जाएगा नीचे। देन दिस 4 into 1 is 4, वो यहाँ लिखेंगे। Now this 4 and -2 will be 2. Is that okay? देख लो वापस से। फिर ये 2 into 1 will be 2, वो यहाँ लिखेंगे। एंड -3 and 2 सब करेंगे तो -1, और फिर -1 into 1 करेंगे तो वे गेट -1, और ऐड किया तो 0 आ गया। सो ये आने के बाद पता कैसे चलेगा कि क्या रिमाइंडर है और क्या कोशेंट है? तो वी नो दैट 1 डिग्री से जब डिवाइड करते हैं तो 0 डिग्री का रिमाइंडर आता है, तो ये हो गया रिमाइंडर। और बाकी जो बचा ये क्या है? कोशेंट है। तो लास्ट टर्म तो सिंगल होता है, इसके पहले वाला जो टर्म है वो x का कोफिशिएंट, उसके पहले वाला जो टर्म है वो x² का कोफिशिएंट। So this is what you get when you divide this cubic by this linear function sin -1. अब क्यूबिक का एक रूट पहले से आ चुका है और बाकी 2 रूट निकालने के लिए अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। You everybody know what a quadratic equation is because 10th में पढ़ाया गया है, और मेरे भी किसी लेक्चर में वीडियो में I will make the video for the same. क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का सिंपल फॉर्मूला है आपके पास -b that is 2 ± √b² -4ac divided by 2a. So this will give you -2 ± 2√5 upon 4. So एक तो sin x का वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू में 1 मिला था, दूसरा में मिला है -1 -√5/4, और तीसरा मिला है -1 +√5/4. Let me write it as √5 -1/4. 3 वैल्यू तो पक्की बातें नहीं हो सकती। तो साइन थीटा इज इन दिस केस 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि 90 पे 1 होता है पहली बार, तो धीरे धीरे 0 से इंक्रीज होगा, तो 18 डिग्री पे 1 नहीं हो सकता। सेकेंड वाला भी नहीं हो सकता बिकॉज सेकेंड नंबर इज नेगेटिव, और 18 डिग्री इज अक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर साइन थीटा क्या, सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं।
तो बचा क्या, √5 माइनस 1/4. सो फाइनली वी गॉट कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू √5 माइनस 1/4. ये मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है. अब साइन 18 का वैल्यू मिल गया, तो cos 18 का वैल्यू कैसे, cos 36 कैसे फाइंड करेंगे. एंगल्स में अगर देखोगे तो एंगल्स में डबल का रिलेशन है, तो वी नीड cos 36 जबकि वी हैव साइन 18. तो व्हाट स्ट्राइक्स टू योर माइंड इज कि ये तो हाफ है एंगल का, और एंगल का हाफ होगा तो क्या यूज करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला. और हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है cos का साइन में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 36/2 इज 18 डिग्री. ना ये आपको पता है 18 डिग्री का वैल्यू, स्क्वायर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट cos 36 दैट इज √5 प्लस 1/4. तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं. पहले भी लास्ट कुछ क्वेश्चंस में मैंने यूज भी किया हुआ है इफ़ यू रिमेंबर. तो ये हमारे दो पार्ट हो गए. ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज दिस 60 माइनस थीटा वाला सेट. 60 माइनस थीटा वाले सेट में देखना, पहला फॉर्मूला है cos 60 माइनस थीटा, सॉरी साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा. नाउ वन आइडिया इज कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, लास्ट वाले में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, फिर उनको मल्टीप्लाई करके साइन मल्टीप्लाई करो. बट देयर इज वन मोर फॉर्मूला that is sin a plus b into sin a minus b. ये होता है sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. ये आप इजीली डिराइव कर सकते हैं. LHS से स्टार्ट करोगे तो भी आ जाएगा RHS, RHS से स्टार्ट करोगे तो LHS आएगा. ओके ना, होमवर्क फॉर यू. दूसरा फॉर्मूला होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, और ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. लेकिन बुक्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ और लिखा होता है. अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर a यूज करता हूं मैं तो दैट विल गिव यू cos स्क्वायर a और बचा साइन स्क्वायर b. और 1 के साथ अगर मैंने साइन स्क्वायर b यूज कर लिया तो दैट विल बी cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a. तो कहने का मतलब ये कि पहले cos आएगा फिर साइन आएगा. cos के साथ a लिया तो साइन के साथ b, cos के साथ b लिया तो साइन के साथ a. So here we have sin a plus b into sin a minus b, that will be sin square a minus sin square b. और ये बीच वाला जो sin थीटा है that is remaining. Now sin 60 is √3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो we will get 3/4. √3/2 का स्क्वायर is 3/4. Now if I take 1/4 common, तो remaining is 3 minus sin square theta into sin theta. Now simple. ये sin theta को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 sin theta minus 4 sin cube theta, and which is formula for sin 3 theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta is 1/4 sin 3 theta. So finally answer is 1/4 sin 3 theta. In the same way we can derive the formula for cos 60 minus theta वाला also, और फिर दोनों को डिवाइड करके हमने tan theta पहले देखा हुआ है. तो these are the derivations of this formula. Now how we are going to use this formula. इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है. 3 थीटा वाले का यूज तो मैंने एक आपको दिखाया 18 डिग्री वाले फॉर्म में, बाकी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी. ये जो 60 माइनस थीटा वाला स्टोरी है उसके लिए हमें क्या करना है, लेट्स सी. सपोज एक एंगल है साइन 20, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री. तो if I consider this 20 degree as theta, then what is 60 minus theta? If theta को मैंने 20 डिग्री माना, स्मॉलेस्ट एंगल को थीटा मानते हैं, तो अगर 20 हुआ
तो 60 माइनस थीटा क्या होगा? 60 माइनस थीटा will be 40 degree. And we also need 60 plus theta, or 60 plus theta will be 80 degree. So we have sine theta, sine 60 minus theta, sine 60 plus theta, and that will be 1 by 4 sine 3 theta, 3 into 20. और एक पुराना sine 60 अपना बच गया। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और ये भी साइन 60 √3/2, तो आंसर आ गया 3/60. आंसर इज 3/60. दिस इज हाउ वी यूज. इन सम केसेस इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट कि दो उसमें से दो वैल्यूज होंगी, थीटा होगा 60 माइनस थीटा होगा, 60 प्लस थीटा मिसिंग होगा. तो क्या करेंगे? 60 प्लस थीटा वाला टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, फिर बाकी का जो भी टर्म आएगा अपने आप वो सेट हो जाएगा. सो दैट इज प्रोफाइल ऑफ 3 थीटा. वी कॉल्ड इट प्रोफाइल नंबर 5. प्रोफाइल नंबर 5 के बाद नेक्स्ट इज प्रोफाइल नंबर 6 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत फ्रीक्वेंटली हर चैप्टर में आता है एंड दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा. ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान रखना, सिर्फ a sin प्लस b cos के लिए यूज होगा. बीच में माइनस हो सकता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ b, लेकिन साइन और cos को आप चेंज नहीं कर सकते, वो साइन और cos रहेगा. इट कैनॉट बी tan एंड cot, इट कैनॉट बी साइन स्क्वायर एंड cos स्क्वायर इवन. तो ओनली a sin थीटा प्लस b cos थीटा. तो whenever we see anything of this kind, what we do is we divide the whole term by under root a square plus b square. तो अगर under root a square plus b square से डिवाइड करेंगे बोलो कोई प्रॉब्लम अभी यहाँ पे? थिंक अबाउट इट. पूरे इक्वेशन को पूरे एक्सप्रेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. ऑल गुड? एक्चुअली नॉट, क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएगी. और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन थीटा के साथ ये जो टर्म है ना, इसको आप मान लोगे कॉस में कोई एंगल, लेट्स से कॉस अल्फा. जैसे ही साइन थीटा के साथ वाले को कॉस अल्फा मानोगे ना, कॉस थीटा के साथ जो टर्म है ये अपने आप साइन अल्फा हो जाएगा. लेट्स सी हाउ. साइन थीटा के साथ जो टर्म था उसको हमने कॉस अल्फा माना है, तो कॉस अल्फा का वैल्यू गिवन है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो लिख दिया. नाउ व्हाट विल बी परपेंडिकुलर? If we use Pythagoras, we'll get perpendicular is b. So now what is sin alpha? Sin होता है perpendicular upon hypotenuse and that will give you b upon under root a square plus b square. देखो वही लिखा हुआ है sin alpha की जगह b upon under root a square plus b square. So always remember sin थीटा के साथ जो भी टर्म है उस पूरे को आप मानेंगे cos alpha, तो cos थीटा के साथ वाला टर्म क्या हो जाएगा? sin अल्फा. वी कैन ऑल्सो डू इट लाइक कि sin थीटा के साथ वाले को sin अल्फा मान लो, तो cos थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली cos अल्फा हो जाएगा. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ sin थीटा इंटू cos अल्फा प्लस cos थीटा इंटू sin अल्फा. ये तो कोई फॉर्मूला होता है. कौन सा फॉर्मूला होता है? sin a cos b plus cos a sin b, which is sin a plus b. So ये हमने क्या किया, दो डिफरेंट रेशियोज थे, एक साइन था एक कॉस था, दोनों को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया. दोनों कॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है. नाउ टेल मी समथिंग. साइन थीटा का वैल्यू वी नो दैट साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1. हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होता है. एंड सेम गोज फॉर cos थीटा ऑल्सो. तो साइन थीटा का वैल्यू अगर -1 से 1 है तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा
-2 से +2? नो, थीटा में कुछ भी चेंज कर लो, साइन यूज करने के बाद वो -1 से 1 ही आने वाला है. इवन इफ आई से साइन 1000 थीटा, तो भी वो -1 से 1 होगा. इफ आई से साइन थीटा प्लस फाई, तो भी वो -1 से 1 के बीच में होगा. तो साइन ऑफ एनी डैम एंगल विल ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1. लेकिन if it multiply 2 after taking the sign, then it will become -2 से +2. अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 से 3 हो जाएगा. 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 से 4 हो जाएगा. अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो -अल्फा से +अल्फा हो जाएगा. So whatever number you multiply into sine, the result will be minus of that number to plus of that number. Now come back. ये sin थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, whatever may be the value of theta and alpha. उसमें अगर ये नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो now we get anything between minus of this number to plus of this number. Something like -2 से +2. In this case, -3 से +3, -4 to +4, -alpha to +alpha. So that is called range of a sin theta plus b cos theta. तो a sin theta plus b cos theta में ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है. Now you have to remember one thing. इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एक रिलेटेड टू रेंज, मतलब कि भाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज बताओ, या फिर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम वैल्यू बताओ, या फिर a cos थीटा प्लस b cos a sin प्लस b cos का मैक्सिमम वैल्यू बताओ. तो मैक्सिमम, मिनिमम और रेंज ये तीनों सेम बात है. तीनों में हमें सीधा सीधा ये रिजल्ट याद कर लेना है. वी सिंपली रिमेंबर दिस रिजल्ट. For anything else, any other kind of questions, for any other kind of question, we use this whole process. ये पूरा process आपको use करना पड़ेगा. Now, what do I mean by for other questions? Let's start. Suppose we are given a question 3 sin theta minus 4 cos theta. What would be the maximum value? Maximum value is under root a square plus b square. That will give you 3 का square 9 और -4 का square 16 and root is 5. तो maximum value is 5. Minimum value is minus of this तो -5. Range of this minus this to plus this, -5 to +5. तो अगर मैक्सिमम, मिनिमम या रेंज पूछा है तो सीधा हमें फॉर्मूला पता है, वी कैन यूज दैट. लेकिन फॉर अदर केसेस का मतलब क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस नंबर इज मैक्सिमम फाइंड थीटा. तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है, रेंज नहीं पूछा है, तो दैट वे आई कॉल कि फॉर अदर केसेस. और अदर केसेस के लिए क्या बोला मैंने? वी डिवाइड इट बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वॉज 5 से डिवाइड कर दिया. ऑल गुड? नहीं, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना. अब साइन थीटा के साथ जो नंबर है इसको हम कॉस में अज्यूम कर लेते हैं कुछ. वैसे तो cos अल्फा विल डू, बट 3/5 आपको पता होगा कि cos में क्या होता है, और 37 नहीं 53 डिग्री होता है. cos 53 इज 3/5. फिजिक्स में काफ़ी यूज़ करते हैं. और जैसे ये cos 53 हुआ, ये अपने आप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin 53. सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन बिकम्स 5 इंटू sin थीटा cos 53 minus cos theta sin 53. That is a formula of sin A minus B. Sin A cos B minus cos A sin B. So this will give you sin theta minus 53 degree.
Now it is given that it is maximum, so we know that it is equal to 5 because it is given कि ये maximum है। तो इसका वैल्यू 5 होने का मतलब साइन थीटा माइनस 53 का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा माइनस 53 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब साइन का वैल्यू 1 कब होता है? वैसे तो इनफाइनाइट केसेस आर पॉसिबल, द मोस्ट प्रोमिनेंट इज यू विल से 90 डिग्री। सो व्हाट वी गेट, थीटा इक्वल्स टू 143 डिग्री। तो थीटा अगर 143 रखोगे तो दिस ए 3 साइन माइनस 4 कॉस विल बी मैक्सिमम, दैट्स इट। तो या तो रेंज या फिर एनीथिंग एल्स। रेंज तो हमें रिजल्ट याद है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फॉर एवरीथिंग एल्स वी यूज दिस मेथड। नाउ अनदर क्वेश्चन, 3 sin square theta minus 4 cos square theta, इसका रेंज क्या होगा? And it is not minus 5 to plus 5, be sure, because this is not a sin plus b cos. So what I am going to tell you, one more thing, that is a sin square theta plus b cos square theta का रेंज होता है a to b. तो in this case, this will lie between minus 4 to 3. अब a छोटा होगा तो पहले a लिखने का, b छोटा है b पहले लिख देने का, that is as simple as that. So that is a special note for you, because mostly आप इन दोनों में कंफ्यूज हो रहते हैं, मोस्टली दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगा देते हैं, but that is totally different question. Now next part is profile number 6. Profile number 6 में we are going to use 3 formulae. First one is cos theta, cos 2 theta, cos 4 theta up to cos 2 power n theta, and that is equal to 2 power n plus 1 theta का sin upon sin theta into 2 raised to the power n plus 1. Second formula we are going to use is sin a plus d. कुछ फील आया? a प्लस 2d मतलब क्या चल रहा है, ये एंगल्स AP में है और उसका nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d. सेम गोज फॉर cos ऑल्सो, cos a प्लस d, cos a प्लस 2d up to cos a प्लस n माइनस 1d. दोनों का फॉर्मूला मैंने एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों सिमिलर होते हैं। बोथ आर साइन n d by 2 अपॉन साइन d by 2. दिस ऑल्सो साइन n d by 2 अपॉन साइन d by 2 इनटू, यहाँ तक सब सेम था, अब यहाँ डिफरेंट है, ये साइन होगा और ये कॉस होगा, और फिर फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1d बाई 2, और यहाँ कॉस में भी सेम 2a प्लस n माइनस 1d बाई 2. सब में ये एक्सप्रेशन आता है, बट व्हाट आई प्रेफर इज a प्लस l बाई 2, दिस इज ऑल्सो a प्लस l बाई 2. So these are the formulae, and now we are going to use some examples for the same. So first formula ये जो है cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, ये फॉर्मूला तो चलो ठीक है, बट एक्चुअली मैं I have another way of using this formula. So let's start with an example. I say cos theta, cos 2 theta, cos 4 theta, cos 8 theta, and instead of this formula I use the formula which I call it, ध्यान से देखना, लार्जेस्ट एंगल के डबल का साइन, लार्जेस्ट एंगल इज L, तो लार्जेस्ट एंगल के डबल का साइन डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट एंगल का साइन इनटू 2 raised to the power number of terms. What did I say? I said largest angle के डबल का साइन
डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट एंगल का साइन into 2 raised to the power n. And after writing this answer, you have to check whether answer is correct or not. And for that, what we are doing is hypothetically check करोगे तो every term will be cancelled. Sin कोई simple number नहीं होता है, separate number नहीं होता है, but I am calling it hypothetically a number. तो देखो sin cancel हो गया, ये जो 2l s और 2 power n है ये भी आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए. If everything is cancelling out, then it is correct answer, else you have made some mistake. So let's do this question. फॉर्मूले से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, no issue at all, but this would be better way to solve the question. लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? लार्जेस्ट एंगल देखोगे तो दैट इज 8 थीटा है और 8 थीटा का डबल हो जाएगा 16 थीटा. तो लार्जेस्ट एंगल का डबल का साइन डिवाइडेड बाय क्या था? स्मॉलेस्ट एंगल का साइन. स्मॉलेस्ट एंगल देखोगे तो थीटा है इंटू 2 रेज़्ड टू द पावर नंबर ऑफ टर्म था. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर टोटल 4 टर्म्स. सो दिस शुड बी द आंसर इफ एवरी टर्म इज कैंसलिंग आउट हाइपोथेटिकली. तो देखना ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, ये थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, ये 16 और 16 भी कैंसिल हो गया. Now everything is cancelling out, so this answer is correct. Otherwise ये wrong होता. Let us take another example. Cos 8 theta, cos 16 theta, cos 32 theta, cos 4096 theta. क्या होगा? चलो pause the video and find the answer. I will say largest angle के डबल का साइन that is 8000 बोला मैंने, 8192 थीटा का साइन अपॉन स्मॉलेस्ट एंगल इज 8 थीटा का साइन इंटू 2 रेज़्ड टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स. अब कितने टर्म्स है ये आपको काउंट करना है, तो या तो काउंट कर लो या फिर वो आइडिया देखना. साइन और साइन कैंसिल हो गए, थीटा और थीटा कैंसिल हो गए. मैं बैकग्राउंड येलो कर रहा हूं, ध्यान से देखना. ये 8012 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 1024. तो नीचे ये जो टर्म है 2 पावर समथिंग, ये 104 के इक्वल होना चाहिए और वो कब होता है? 2 पावर 10 में. इसका मतलब यहाँ पे 10 टर्म्स हैं. लेट्स सी, ये जो 8 है ये 2 पावर 3 है, 16 इज 2 पावर 4 एंड 496 इज व्हाट? दैट इज 2 पावर 12. 2 पावर 10 होता है 1024, 2 पावर 11 2000 समथिंग एंड 2 पावर 12 इज 4000 समथिंग. तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू 12. कितने टर्म्स हुए? 3 से 12 तक कितने टर्म्स होते हैं? इसमें भी कंफ्यूजन होता है. 3 से 12 तक कितने टर्म्स होंगे? 9 टर्म्स. ओके, नॉट ओके. 3 से 12 तक 9 ने 10 टर्म्स होते हैं. इफ यू सी 1 से 5 तक कितने टर्म्स होंगे? 1 to 5 अगर आप देखोगे तो 5 टर्म्स होंगे. बट अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो 5 - 1 क्या 4 टर्म्स होते हैं? नहीं. तो m से n तक कितने टर्म्स होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम m to n इफ टेक ऑल द इंटीजर्स दैट इज n - m + 1. 5 से 10 तक कितने टर्म्स होंगे? 5 टर्म्स नहीं होंगे. 10 - 5 + 1 मतलब 6 टर्म्स होंगे. तो हियर हाउ मेनी टर्म्स? 12 - 3 दैट इज 9 + 1 दैट इज 10 टर्म्स. देखो मैच कर गया. सो द आइडिया इज लार्जेस्ट एंगल के डबल का साइन, देखो ये लिखा हुआ है, लार्जेस्ट एंगल के डबल का साइन अपॉन स्मॉलेस्ट एंगल का साइन इंटू 2 रेज़्ड टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू 2 रेज़्ड टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स. ये देखो स्मॉलेस्ट एंगल का साइन. इज दैट ओके? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नाउ जो दूसरा फॉर्मूला था ये एपी वाला, ये एपी वाला क्वेश्चन हम फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करते हैं. एक क्वेश्चन हमने
प्रोफाइल 3 में किया था, जिसमें मल्टीपल टर्म्स होते थे, लाइक साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अप टू साइन 360 डिग्री। ये एक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 360 को अलग कर दिया था एंड देन वी पेयर्ड 10 इज पेयर्ड विद 350, 20 इज पेयर्ड विद 340 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से पेयर करके वी यूज टू फाइंड द वैल्यू। नाउ इन दिस, नाउ वी नो दैट दीज एंगल्स आर इन AP, और एंगल्स अगर AP में है तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वाज sin ND/2 अपॉन sin D/2 into sin 2A plus n minus 1 into D/2. Instead of this, what I prefer is A plus L/2. So using this we will say, in this question A is 10 degree, common difference is also 10 degree, and number of term is 360. Is that okay? Not okay. Number of term is just 36. There is no 360 terms, क्योंकि 10 है, 20 है, 30 है, 1 2 3 4 थोड़ी है। तो फॉर्मूला के हिसाब से आएगा साइन ND/2 अपॉन साइन D/2 into sin A plus L/2. Now if you see this part, what is this? This is sin 180, और sin 180 का वैल्यू 0 होता है, तो बाकी का कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। So this is how we use this formula of angles are in AB. One more formula let us take. cos में लेते हैं, cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा अप टू cos n अल्फा। इसका सम क्या होगा? अगेन सेम स्टोरी, पॉज करो एंड फाइंड करो। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। तो फॉर्मूला होता है साइन ND/2 अपॉन साइन D/2। याद रखना, यहाँ भी वापस A भी अल्फा है और D भी अल्फा है। इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, बट इन दिस 2 क्वेश्चंस इट इज़ लाइक दैट ओनली। और फिर यहाँ साइन की जगह बस cos हो जाता है, एंड cos में A प्लस L/2 इज व्हाट आई लाइक। सो आई विल से आंसर इज साइन N⁴/2 अपॉन साइन α/2 into cos n+1 α/2. So this is the final use of this trigonometry functions. So I think we have covered almost everything in this except conditional identity. So that I can take profile 7, which is conditional identity. आइडेंटिटी के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है। आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि आइडेंटिटीज आर दोज इक्वेशंस व्हिच आर ऑलवेज ट्रू। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट कंडीशनल आइडेंटिटी? तो कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब होता है एन आइडेंटिटी विद अ कंडीशन। मतलब कि अगर ऐसा होगा तो ये हमेशा ट्रू है, अदरवाइज नहीं। तो हमेशा ट्रू है लेकिन एक कंडीशन के साथ, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंडीशनल आइडेंटिटी। सो देयर आर सो मेनी केसेस, सो मेनी क्वेश्चंस, बट सब में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, आइडिया इज कंप्लीटली सेम। सो आई विल सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी एज यू वांट। तो इसमें एग्जांपल सही करने वाले हैं। तो कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी विद अ कंडीशन। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। लेट अस से कि इन अ ट्रायंगल ABC, या फिर क्या लिखा होगा, इफ A plus B plus C equals to 180 डिग्री, देन तो
एनी वेज यू विल बी गिवन दिस इज कॉल्ड कंडीशन। और आइडेंटिटी बोलेंगे कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का वैल्यू बताओ। इसको सिंप्लीफाई करना होगा या इसका राइट हैंड साइड भी गिवन होगा, कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना होगा, वट एवर इट इज द मेथड इज एग्जैक्टली सेम। व्हाट वी हैव टू डू इज we have to use the formula C and D वाला formula set 3 if you remember, किसी भी दो में, या तो फर्स्ट सेकेंड में या सेकेंड थर्ड में। तो लेट अस यूज साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी में फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। एंड रिमेनिंग जो C है we will convert it to combination of A and B using the given condition. In this case, we are given the condition A plus B plus C equals to 180. To using that, we can say that this C is 180 minus A plus B. What would we see? 180 degree minus A minus B. ये ऊपर लाइन बना हुआ है, मोस्ट ऑफ यू मे बी नोइंग, बट इट इज कॉल्ड लाइन ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के भी छोटा होता है लाइन ब्रैकेट। नाउ दिस इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये साइन ए प्लस बी हो गया। Now everything is in the form of A and B, लेकिन इधर पहले A plus B by 2 है और उधर सिर्फ A plus B है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। So what we have to do is convert everything into A plus B by 2। तो ये तो 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2 as it is रहेगा। और इस साइन को हम sin A by 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Using half angle formula, which is what? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. And now you know what to do. Tell me. Now we can take common 2 sin A plus B by 2 common ले लिया, तो मिला cos A minus B by 2 plus cos A plus B by 2. Now what? ये तो 2 sin A plus B by 2 हो गया। एंड नाउ अगेन यू नो व्हाट टू डू। cos C plus cos D का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2। या फिर अगर याद हो सेट 2 cos A plus B plus cos A minus B, that was 2 cos A cos B, तो भी अच्छा है। तो whatever formula we use, set 2 या set 3, in both the cases we get the same result। इस पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। You have to actually do this on the pen paper, तो ही समझ में आएगा। और लास्ट स्टेप में होता है ये जो A plus B है ना, A plus B by 2, उसको वापस से C में कन्वर्ट करना। तो ये 2 sin A plus B is what? A plus B is basically pi minus C, 180 degree minus C। और ये 2 cos A by 2 cos B by 2। Now see, this 2 and 2 is 4, then cos A by 2, then cos B by 2, and what about this part? ये sin pi minus theta नहीं है, ये pi by 2 minus theta by 2 है। तो basically sin 90 minus theta हुआ, sin 90 minus C by 2 हुआ। और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो ये cos C by 2 आएगा। So this is called conditional identity, that sin A plus sin B plus sin C will always be 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2 provided A B C का sum 180 है। हो सकता है 360 में भी हो सकता है 540 में हो, लेकिन हमेशा नहीं होगा, 181 डिग्री पे नहीं होगा। तो it depends on दिस कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन है तो ये आइडेंटिटी काम करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंडीशनल आइडेंटिटी। नाउ लेट मी टेल यू सम रिजल्ट्स, सम रिलेशंस बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। ऑलमोस्ट क्या? एवरी क्वेश्चन एक्चुअली।
लेफ्ट साइड में जो एंगल होता है राइट साइड में उसका हाफ एंगल होता है। लेफ्ट के एंगल का हाफ राइट में होगा। दूसरा, यहाँ पे तीनों के तीनों प्लस साइन में है, मतलब सेम साइन के हैं, तो राइट में तीनों रेशियो सेम आएंगे। ओके, अगर किसी एक का साइन चेंज है ना तो उसका रेशियो डिफरेंट आएगा। अब ये बोलने का मेरा मतलब हुआ, लेट अस टेक एग्जांपल 2 कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c when a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई। अब प्लस की जगह मैंने यहाँ पे किसी एक का साइन चेंज कर दिया एंड आई टेक इट माइनस। cos c प्लस cos d लगाएंगे तो फॉर्मूला आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आपको स्लो रखना है। और ये c को वी कैन राइट पाई माइनस a प्लस b। नाउ cos 2 पाई, ये बेसिकली पाई माइनस थीटा नहीं हुआ, 2 पाई माइनस थीटा हुआ। और 2 पाई माइनस थीटा बोलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ में cos तो cos ही रहता है। नाउ दिस इज cos 2 थीटा और यहाँ पे सिंपल cos थीटा है। ऑब्वियसली दोनों को थीटा में लाना पड़ेगा। अब cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। देयर आर 4 फॉर्मूले फॉर cos 2 थीटा, तो वी आर गोइंग टू यूज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वाला फॉर्मूला, बिकॉज cos में आएगा और इधर भी cos में ही है। नाउ 2 cos a प्लस b कॉमन ले सकते हैं, बचा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b प्लस 1। ये a प्लस b को वापस से मैंने 180 माइनस c लिखा। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, दैट इज 2 sin a sin b। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, या फिर cos c प्लस cos d भी लगा सकते हैं। तो 1 आ गया। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो आएगा माइनस, ये 2 और 2 हो गए 4 sin a sin b cos c। अब ध्यान से देखना जो मैं कह रहा था, यहाँ पे देखना c वाले का साइन डिफरेंट है तो c वाले का रेशियो अलग आए। आई एम नॉट सेइंग कि cos में cos आएगा या cos में साइन आएगा, बट a और b का साइन सेम था तो a और b के साथ रेशियो सेम आएंगे, दोनों साइन या दोनों cos। c का रेशियो साइन डिफरेंट था तो c का रेशियो डिफरेंट आएगा। दूसरी बात, हर जगह एंगल तो हाफ हो ही जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। In the next video, I will solve last year questions of JEE Mains and Advanced, and then we will do other things. Thank you.